गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर 11th क्लास का, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट स्ट्रक्चर पार्ट है, दूसरा पार्ट इसका फंक्शनिंग पार्ट है और तीसरा पार्ट इसका डिसऑर्डर्स का पार्ट है। तो डाइजेशन का मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स food substance to simple absorbable form is called digestion. This is done by digestive system by mechanical and biological method. It includes ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion process. This is the diagram showing various parts of digestive system. First part is mouth. In previous class we discussed about known as buccal cavity. Second part is esophagus. Third part is stomach. Fourth part is small intestine. Third part is large intestine. Fourth part is rectum, and last one is anus. And it contains digestive gland. First one is salivary gland, second one is liver, third one is pancreas. Gastric gland are the main digestive gland associated with the digestive system. This is the internal structure of various parts of digestive system. This diagram also shows different parts of digestive system. Next हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. It includes alimentary canal which is near about 8 meter long and different digestive gland. First of all we discuss about alimentary canal. The first part of alimentary canal is a mouth cavity. It is the anterior opening of digestive system which ingest food. It has a muscular tongue on which taste buds are arranged. There are 2 rows of teeth, upper and lower. Teeth are structures present on the jaw, bones extending into buccal cavity. It helps in mastication of food. This is the structure of buccal cavity which showing it tongue and pharynx, epiglottis. Structure of a typical teeth. A tooth consists of 2 main parts, the crown and root. The crown is the portion extending above the gum and the root is portion extending below the gum. Each tooth is embedded in a socket of jawbone. This type of attachment is called thecodont. थीकोडोंट का मतलब क्या होता है कि जो टीथ होते हैं वो जॉ बोन के अंदर फिक्स होते हैं. इस प्रकार के एलिमेंट को नाम देता है थीकोडोंट. और हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग में टीथ होते हैं उसको डाइफाइडोंट भी कहते हैं. मोस्ट ऑफ द मैमल्स फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. दे आर टेम्पररी milk or deciduous teeth and permanent or adult teeth. This type of definition is called diaphyodont. There are 4 different types of teeth in human being, so it is known as heterodont. They are incisor, cutting and biting, canines, tearing teeth, premolar, grinding and mastication, and molar, grinding and mastication. This is diagram showing different types of teeth or arrangement of teeth in our buccal cavity. Now we discuss about dental formula. In dental formula we discuss about number of teeth which present in upper jaw and lower jaw. The dental formula of human being 2, 1, 2, 3. These teeth are given in pairs. upper jaw में 2 पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर. 2 पेयर होते हैं इंसिजर के, 1 पेयर होता है कैनाइन का, 2 पेयर प्रीमोलर और 3 पेयर होते हैं मोलर के.
सेम यही अरेंजमेंट लोअर जाइल में होता है। द हार्ड चिंग सरफेस ऑफ टीथ इज कॉल्ड इनेमल। इस प्रकार अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल होते हैं 32 टीथ। फेरिंग्स, माउथ ओपन्स इनटू ए फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फेरिंग्स। इट इज़ कॉमन पासेज ऑफ एयर एंड फूड। ये एयर और फूड का कॉमन पाथ होता है बेटा। नेक्स्ट पार्ट है इसोफेगस। फेरिंग्स ओपन इनटू ए नैरो ट्यूबुलर मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड इसोफेगस। इसोफेगस के बाद में जो इसोफेगस है ये अटैच होता है स्टमक से। द इसोफेगस ओपन इनटू स्टमक। द स्टमक लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। इट इज सैक लाइक ऑर्गन दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। द स्टमक इज कनेक्टेड टू इसोफेगस at the anterior by a cardiac sphincter and small intestine at the posterior by the sphincter muscles. This is the diagram showing stomach. Stomach contains 3 parts: pyloric, fundic and cardiac. The wall of alimentary canal is made up of 4 layers. First one is serosa. It is outermost layer made up of thin mesothelium with some connective tissue. Second layer is muscularis. It is made up of smooth muscles usually arranged into an inner circular and an outer longitudinal layers. Third layer is submucosa. It is made up of loose connective tissue with nerve, blood and lymph vessel. Mucosa, it is innermost layer that lies the lumen of alimentary canal. It forms irregular folds called rogi in the stomach. It helps in the secretion of mucus and gastric juice. तो इस प्रकार से हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी 4 लेयर होती है। फर्स्ट वन इज सिरोसा, दूसरी मस्कुलरिस, थर्ड होती है सब म्यूकोसा और लास्ट वाली होती है म्यूकोसा। ये बकल कैविटी की स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से फूड बकल कैविटी से होता हुआ स्टमक के अंदर एंटर करता है जी। इसके बाद हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग स्ट्रक्चर विच इज नैरोर देन द स्टमक. It has 3 parts. First part is duodenum. It is a short portion of small intestine which is looped, U-shaped and measured about 25 cm. Jejunum. It is a region about 2.5 meter in length where no digestion occurs. Ileum. It is highly coiled, narrow region measuring about 3.6 meter in length. The wall of small intestine show finger like projection called villi. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ रखा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बहुत सारी फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है जिसको विलाई कहते हैं, उसका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन. द विलाई आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स. इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर शोइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ small intestine. First part is duodenum, second part is jejunum and third part is ileum. After that, this is the diagram showing how liver and pancreas connect to small intestine. This is a diagram showing villi. ये डायग्राम है जो आपको किसकी स्ट्रक्चर शो कर रहा है, विलाई की. एक सिंगल विलाई है, उसकी स्ट्रक्चर को शो कर रहा है. विलाई प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड है वाइलस. इस प्रकार हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है बहुत सारी विलाई पाई जाती है जो फूड को डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करती है. लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू ए ट्यूबुलर लार्ज इंटेस्टाइन विच इज 5 cm wide and 2 cm long. It has 3 parts. First is cecum, not well developed in human being but developed in cattle and other ruminants. Do you know what is the meaning of ruminants? Ruminants बच्चों कहते हैं जो grass eating animals are known as ruminants. To accommodate the bacteria which helps in digestion of cellulose.
यानी कि ह्यूमन बीइंग में डाइजेस्ट सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता, तो सीकम इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इन मैन इट शोज ए स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड अपेंडिक्स। द इन्फेक्शन ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड appendicitis. It is a vestigial organ and can be removed if infected. Second part है colon. Cecum opens into colon. It is divided into three parts: an ascending, transverse and a descending part. And last part is rectum. The descending part of the large intestine open into rectum, which opens out through the anus. The rectum stores the undigested food as fecal matter till it can be passed out. The anus is guarded by external and internal sphincter muscles. And last one, this is the diagram showing large intestine how connected to rectum and various parts of the large intestine. Digestive gland and their secretion. यहाँ पर जो हम डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले नाम आता है सलाइवरी ग्लैंड, जो सिक्रेट करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है। दूसरी आती है लीवर, जिसको कहते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड, जो बाइल सिक्रेट करती है और जिसको स्टोर करते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। और तीसरी ग्लैंड है, उसका नाम है पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है। एक प्रकार से ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम भी करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड का काम भी करती है। जब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम करती है तो जूस बनाती है, वो उस केस में एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करेगी। और जब एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करेगी उस केस में जो एक हार्मोन बनाती है उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। These are the position of salivary gland. यस स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सलाइवरी ग्लैंड की। तो सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है कि इसमें 3 पेयर्स होते हैं, जिसमें ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये तीन अलग अलग होती है। पहले होती है पैरोटिड, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड सीन इन द चिक। सब मैक्सिलरी ग्लैंड, उसके बाद में सबलिंगुअल ग्लैंड्स। जो सबलिंगुअल जो ग्लैंड होती है वो होती है अपने जीभ के नीचे, और जो सब मैक्सिलरी होती है वो होती है लोअर जा में। वो कहाँ होती है? लोअर जा में। दिस डायग्राम शोइंग मूवमेंट ऑफ फूड, यानी कि फूड हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार से मूवमेंट करता है जी। डाइजेशन ऑफ फूड, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द डाइजेशन। अब हम बात करेंगे फूड का डाइजेशन कैसे होता है जी। इन एलिमेंट्री कैनल बकल कैविटी इन डाइजेशन मैस्टिकेशन एंड डाइजेशन ऑफ स्टार्ट 30%, यानी कि जो हमारी बकल कैविटी है उसके अंदर फूड का इनडाइजेशन एंट्री करती है, मैस्टिकेशन करती है, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करता है, और स्टार्च का 30% डाइजेशन 30% डाइजेशन वहाँ पर होता है। फेरिंग्स स्वेलिंग डीग्लूटेशन, यानी कि इसमें फूड का जो बोलस है उसको स्वेलो किया जाता है, आगे ट्रांसफर करते हैं इसोफेगस में। इसोफेगस लिंक्स फेरिंग्स टू स्टमक, यानी कि इसोफेगस है वो फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ता है, और उसको जो बकल कैविटी का फूड है जो जब जिसमें आता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से क्या करते हैं इसको स्टमक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं स्टमक फूड का स्टोरेज होता है एंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। जो पहला पार्ट है ड्यूडिनम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में इसके 2 पार्ट होते हैं, इलियम कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद में कोलन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रेक्टम फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ फीसेस, और एनएस से होता है इजेशन। इसके बाद में आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो हमने बात करती है सलाइवरी ग्लैंड, जो फूड को लुब्रिकेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च में हेल्प करती है। लीवर, इसकी हम बात करेंगे। लीवर का फंक्शन है, लीवर बाइल जूस सिक्रेट करती है, और उस बाइल जूस का फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या करती है? डाइजेशन ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन जो होता है हमारी बकल कैविटी में। स्टार्च क्या करती है? एक एंजाइम बनाती है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। कुछ बुक्स में इसको टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं, लिखा हुआ हो सकता है,
जिसकी pH होती है वो होती है 6.8, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करती है और माल्टोज में कन्वर्ट करती है। उसके बाद हम बात करें प्रोटीन्स का डाइजेशन वो किस प्रकार से होता है। प्रोटीन्स पेप्टोन्स और प्रोटीओज, इसको तीन जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज वो कन्वर्ट होते हैं डाईपेप्टाइड्स में। वो किस में कन्वर्ट होते हैं? डाईपेप्टाइड्स में। यस, आगे हम बात करेंगे समरी में। जो पॉलीसेकेराइड से स्टार्च जिसमें आते हैं उसको एमाइलेज की हेल्प से कन्वर्ट करता है डाइसेकेराइड्स में। और फैट्स है, जो फैट्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम का नाम है उसका लाइपेज, वो कन्वर्ट होता है डाइग्लिसराइड्स में और डाइग्लिसराइड से कन्वर्ट होता है मोनोग्लिसराइड्स में। न्यूक्लिक एसिड, उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम न्यूक्लियस और वो कन्वर्ट होता है न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स में। डाईपेप्टाइड से कन्वर्ट जो डाइजेस्ट होते हैं डाईपेप्टाइड से और उसको कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड्स के अंदर। उसके बाद में माल्टोज की हम बात करेंगे तो माल्टोज को डाइजेस्ट होता है माल्टेज में, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज लैक्टेज से डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। सुक्रोज है, सुक्रेज से डाइजेस्ट किया जाता है, ग्लूकोज प्लस सुक्रोज बनता है। और न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइड्स बनाएगा और न्यूक्लियोसाइडेज डाइजेस्ट करके बनेगा शुगर प्लस बेस। ये जो हम बात करें ये चीज़ें शुगर प्लस बेस ये बने होते किस में प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं डीएनए और आरएनए। उसके बाद होता है डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स, जो एक टाइप के फैट्स होते हैं। लाइपेज उसको डाइजेस्ट करता है और बनाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट हम बात करेंगे वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स है, यानी कि डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ के अंदर। सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन contact with the mucosa of mouth and lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ड्रग्स जो माउथ होता है हमारी बकल कैविटी है उसकी म्यूकोसा के कांटेक्ट में आते हैं और लोअर साइड द टंग वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो इसमें लाइनिंग होती है जी। इसके बाद में स्टमक में जो एब्जॉर्प्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल एटसेट्रा टेक प्लेस। स्टमक की एक चीज़ और बता दूं मैं, स्टमक के अंदर 3 टाइप की चीज़ें बता। यस स्टूडेंट्स, स्टमक के लिए मैं एक चीज़ बताना भूल गया था। स्टमक में 3 टाइप की सेल्स होती है और वो सेल्स उनका फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। पहली होती है म्यूकस नेक सेल जो म्यूकस सिक्रेट करती है। दूसरी होती है चीफ सेल जिसको जाइमोजन सेल भी कहते हैं और वो सेल एक एंजाइम सिक्रेट करती है जिसका नाम है प्रो एंजाइम और उससे एंजाइम सिक्रेट होती है जो पेप्सिन को रिलीज करता है। और तीसरी होती है ऑक्जेंटिक सेल जो बनाती है HCl को, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फूड को एसिड की मीडियम प्रोवाइड करता है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्टमक में जो फूड का एसिड की मीडियम होता है वो नियर अबाउट होता है 1.5, उसकी pH कितनी होती है 1.5 के लगभग होती है जी। यस स्टूडेंट्स, आगे हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हमारे फूड का जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ, यानी कि यहाँ पर जो कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट्स है उनका यहाँ पर क्या होता है एब्जॉर्ब किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक प्लेस। अब आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एंड मल फंक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे इसमें आने वाले डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है जॉन्डिस, लीवर गेट अफेक्टेड, यानी कि जॉन्डिस होता है तो कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है? लीवर। स्किन एंड आइज टर्न येलो टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, यानी कि इस
जॉन्डिस में हमारे स्किन और आइज़ का कलर है येलो कलर है और उसका कारण डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट है। नेक्स्ट है वोमिटिंग। इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू माउथ इज कॉल्ड वोमिटिंग। इट इज कंट्रोल बाय मेडुला ऑफ ब्रेन। फीलिंग ऑफ नोजिया प्रेसीड वोमिटिंग। यानी कि इसमें क्या होती है, जो हमारा जो स्टमक का जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, हमारी बकल कैविटी से बाहर आ जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो प्रोसेस में आती है वोमिटिंग। वो क्या कहलाएगा,